Hi student, how are you? I hope you may be healthy and very well with your family and parents. Today we have to discuss about the geography chapter 2 inside our earth. Inside our earth, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है या क्या एक्टिविटीज होती है, व्हाट आर द composition of our earth. Now today we have to discuss about the rocks. What are rocks and minerals? So each and every rock is made by different minerals. We will discuss about especially rocks according to this chapter. Here is the diagram of the inside earth and outside earth. So before we start this video, there is some suggestion on the school sites and my sites also. From 1st July, your homework will be specially start. So it does not mean the homework provided by the teachers before 1st July you should not retain. Perhaps most of the students already retain homework given by the teachers through the videos. So please, if you don't complete past time videos provided by the teachers through your videos classes homework, so you must write in your subject copy, and that subject copy it's mandatory, that is that should be school copy, not other side copy. Or next, whatever homework will be provided you through videos and text material also through PDF, you will write, and that homework or class work or subject work copy will be submitted again on 13th, 14th and 15th July in the schools. So you will complete and you will come to school with your complete copy and you will submit here, and that copy will again checked by the subject teachers, and that copy will be returned on 20, 21 and 22 July. And one more things, that is most important things related to your examination. That examination may be held in the July month. So please prepare for the examination. What things for preparing examination? Whatever videos and text materials sent it through the School Mitra app, you have to write and you have to revise that for the examination purpose. And school also preparing work to interact with the students through online classes on Sunday. If it will be possible, teachers will interact with you on Sunday, and parents can interact with their teachers through School Mitra, so they can also interact on Sunday. All the confusion will be cleared by the teachers, especially subject related, not other related. So let us start our video. First question is here. After seeing this figure, so rocks. So what are rocks? Rocks means चट्टान. चट्टाने क्या है या चट्टान हम किसे कहते हैं? So any natural mass, कोई भी नेचुरल मास है, प्राकृतिक टुकड़ा है, कुछ भी है, मास ऑफ मिनरल्स मैटर, जिसमें कुछ खनिज होते हैं. मिनरल्स मीन्स खनिज. मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि इस अर्थ क्रस्ट, दिस इज अर्थ क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट. पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है जिस पर वी आर लिविंग, हम रहते हैं, घर बना के चलते फिरते हैं, हर काम करते हैं. सो all the human, water body, animals, plants, forest, and each and everything are lying on the crust. So upper surface, flat surface of the earth is called crust. ये crust जो है भूपटपटी जिससे भी बनी है उसको हम बोलते हैं rock, चट्टान. So that is a question. What is rock? Answer is any natural mass of minerals matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be different colors, size. इसलिए मैंने थोड़ा कलर बनाया है जो भी है. तो rocks may be in different colors. If you see the stones, there are different colors stones surrounding in your area also, especially marble.
green marble, white marble, black marble, yellow marble also, pink marble, and also sandstones. There is white sandstones, grey sandstones, रेड सैंडस्टोन्स. तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें स्टोन मिलते हैं. क्ले इज आल्सो ए रॉक, ये भी है. खेत की जुताई करते हैं, मिट्टी है, कठोर होती है, उसको भी हम रॉक्स बोलते हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड मिनरल्स. तो मिट्टी को भी लेते हैं, कहीं येलो क्ले, वाइट क्ले, ब्लैक क्ले, तमाम तरीके की मिट्टियाँ होती हैं. तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, साइज है एंड टेक्सचर भी इनके हैं. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. तो जो क्रस्ट बना है, भूमि की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो बनी है, भूपर्पटी, इसमें बहुत सी रॉक्स हैं, चट्टान है. बट जो मेजर रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स की है. कौन कौन सी है? सो फर्स्ट रॉक जो होती है, अच्छा ये चट्टाने बनी कैसे? तो चट्टान बनने का व्हाट इज द मेकिंग ऑफ रॉक्स प्रोसेसर, प्रक्रिया क्या थी? दैट इज टोटली वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी उद्गार. जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से आग जैसी चीजें निकलती हैं. मीडिया में आप देखते हैं फला जगह ज्वालामुखी फूका, धुआं निकल रहा है, ये है वो है. सो इट्स स्टार्टिंग, volcano is starting as just like molten magma, that is in mantle. जो हमारा inside earth 3 parts का है. So in the center that is core, after that mantle. Mantle is total living inside the earth, just beneath the earth crust, and that is totally in the liquid form. इसमें मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, बट ये इतना प्रेशर और हीट के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड हीट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो ये पिघली अवस्था में होता है, जिसको हम बोलते हैं मोल्टेन मैग्मा. अब ये जब प्रेशर से बाहर निकलता है, अर्थ पृष्ठ के ऊपर जहां हम रहते हैं, इस सतह पर बाहर अपर साइड ऑफ द अर्थ जब आता है, तो यहां पर दिस मैग्मा इज सडनली कूल डाउन. जब ऊपर आ जाता है तो फैलता है, और फैलने के साथ साथ एक्सपेंड करता है. तो होता क्या है, बहुत तेजी से ठंडा भी होता है. आफ्टर कूलिंग डाउन दिस मैग्मा इज कॉल्ड igneous rocks. दिस इज igneous rocks. ये igneous rocks है, चूंकि ये सबसे पहली बार ये बनता है. और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा? सो दिस इज मैग्मा. जब ये इनसाइड अर्थ होता है तो उसी मटेरियल को, मोल्टेन मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्मा. और जब आउटसाइड अपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब आ जाता है, इसको हम बोलते हैं लावा. थिंग इज सेम, दैट इज सेम थिंग. मोल्टेन मैग्मा ही है ये मोल्टेन मटेरियल. जब यहां से इनसाइड अर्थ जब रहता है तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा. और यही चीज जब पृथ्वी के ऊपर आ जाती है, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जब ये आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लावा. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट अब ये मोल्टेन मैग्मा जो है 2 तरीके से कूल डाउन होता है. अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, इफ दैट lava or magma is suddenly cooled down, that is called igneous rocks. Or that igneous rocks is also called primary rocks, प्राथमिक चट्टाने. क्योंकि चट्टान बनने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है पहली बार. तो igneous rocks are also called primary rocks, and igneous rocks according to the situation is also divided into 2 names. यानी कि we have to also divide igneous rocks into 2 rocks. Upper surface rocks, यानी कि outside the earth, this position, जो अपर सरफेस पे रॉक है, igneous rocks, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव igneous rocks. एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर का, बाहरी. क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाती है,
तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आफ्टर दैट इनसाइड द अर्थ देयर इज दिस सिचुएशन इफ मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन बट नॉट सडनली, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, देर से धीरे धीरे, सो स्लोली मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन इनसाइड द अर्थ, दैट रॉक इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर का। तो जब भी हम अर्थ को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो सरफेस के नीचे के हिस्से को हम इंट्रूसिव बोलते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर के हिस्से को हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। पृथ्वी के बाहर का, पृथ्वी के अंदर। तो igneous rocks are also called primary rocks, and if that molten magma upper side the earth is called lava suddenly cool down on the earth surface, that is called extrusive igneous rocks, and if that molten magma is cooled down slowly inside the earth, that is called intrusive igneous rocks. After that, for the weathering in thousands or crores or billions of the years, this igneous rocks, अब इसमें क्या है, इसके रेन, बारिश भी हो रही है, इसको धूप लग रही है, सनलाइट, सो हीट, कोल्ड, रेन, वाटर, विंड, इससे इनका वेदरिंग होता है। वेदरिंग का मतलब होता है कि वो इफेक्ट ऑफ वेदर, जैसा भी मौसम उस एरिया में होता है, इन रॉक्स पर उसका असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ वेदरिंग दीज रॉक्स आर ब्रेकिंग, ये टूटती है। ब्रेकिंग के बाद क्या होता है, क्योंकि जहां पर ये मोल्टेन मैग्मा, ये लावा जो है, ये कूल डाउन होता है, तो दैट इज जस्ट लाइक द हिल। तो ये जो है माउंटेनियस होता है, यानी कि स्लोप इसमें हो जाता है। तो जब कोई भी पत्थर का टुकड़ा वहां से निकलता है, स्लाइड करता है, गिरता है, तो दैट इज रोल डाउन एंड ब्रोक and also clashed among each other, सब between each other। तो एक दूसरे टुकड़े आपस में गिरते हुए टकराते हैं, जिसे ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, घिसते हैं, स्लाइड करते हैं। तो वो आने के बाद दैट्स आर ब्रेकिंग इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। कहीं भी आप माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, तो वहाँ जो भी रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, स्लोप है, वहाँ देखते हैं गोल गोल छोटे मोटे डिफरेंट साइज के जो है काफी स्टोन पीस मिलते हैं। तो वो सारे स्टोन पीस धीरे धीरे जस्ट लाइक सैंड छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, पत्थर के टुकड़े। अब वो क्या होता है, दैट्स आर सेडिमेंटेड। सेडिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बह करके, उड़ करके और आ करके एक के ऊपर एक इकट्ठा होना, परत जिसको बोलते हैं, परत दर परत आकर के रोज का रोज वहीं पर जमता जाता है, जम रहा है धीरे धीरे। इट्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर आल्सो, एक दो दिन की बात नहीं है, हजारों करोड़ों साल में ये चट्टानें तैयार होती हैं। तो इन चट्टानों का चूंकि सेडिमेंटेशन के कारण होता है, परत दर परत जम जाने के कारण होता है, जो इग्नियस चट्टानें टूटती है, उसमें धूल मिट्टी और भी चीजें, वेजिटेशन, कुछ भी चीजें उसके अंदर दब गई हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दैट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स दूसरी बार बनी है, प्राइमरी रॉक से बनी है, तो इसको हम सेकेंडरी रॉक भी बोल सकते हैं। वी हैव टू कॉल, बट इट्स नॉट गिवन इन योर बुक्स, तो नो नीड। अब इसके बाद दो चट्टानें हो गई। फर्स्ट क्या है, इग्नियस, सेकेंड इज सेडिमेंट्री। व्हाट अबाउट द थर्ड रॉक्स, दैट इज मेटामॉर्फिक। दैट रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, तो मेटामॉर्फिक के लिए जो मटेरियल है दैट इज टेकन फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है इनका भी वेदरिंग होता है, हमेशा टूट फूट होती रहती है, तो इनका तो चलता ही रहता है वेदरिंग। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जहां जहां बन गई उनका भी वेदरिंग हो रहा है, वो भी टूट रही है, फूट रही है। अब ये दोनों की जो फ्रेगमेंट है, टुकड़े हैं, ग्रेन्स हैं, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं, वो जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो देयर आर
three different types of rocks given in your book, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So question would be, what is lava? What is lava? I also explained this. So what is lava? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. What is sediments? Sediments क्या होता है? Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. The usage of rocks. Rocks का use क्या है? तो यूज आप जानते हैं, मेकिंग रोड्स, हार्ड स्पेशली हार्ड रॉक्स, मेकिंग बिल्डिंग्स जस्ट लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट. देयर आर मेनी बिल्डिंग्स एंड रोड्स. फिर आज मार्बल्स घर में भी लगते हैं सबके. आफ्टर दैट, व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल? व्हाट इज ए रॉक साइकिल? इट्स गिवन इन योर बुक. वन टाइप ऑफ रॉक चेंज to another type of under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle. तो इसी को हम rock cycle बोलते हैं. From igneous rocks converted into sedimentary, igneous and sedimentary also converted into metamorphic. तो ये साइकिल चलता है. यहाँ से लावा निकलता है बाहर, वो कूल डाउन होता है, igneous rock में कन्वर्ट होता है. igneous रॉक फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती है. फिर igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों मिलकर के आगे चल के मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती है. इसी को हम बोलते हैं रॉक्स. और देयर आर मेनी मिनरल्स फाउंड इन दीज रॉक्स. सो यू स्पेशली यू हैव टू रीड एंड कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक. चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे. ग्लॉसरी डू यू नो, यू विल राइट इन योर कॉपी एंड आल्सो you will write all the questions answer. Is it clear? I hope you will complete after reading your textbook, you will complete your exercise and you can better understand. So to see my videos. So okay, thank you. Jai Hind.